मीराबेला एक पहले से ही बहुत खूबसूरत जगह था, अभी और खूबसूरत बन गया है। एंड अहमद भाई, स्वराज हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट और बहुत अच्छा चले। गॉड ब्लेस देम एंड ब्लेस एवरीवन। Same thing, because Mirabella is a brand and we are all now with them. So we've put in all our hard work and efforts to bring this back for all of you. All the party hoppers have a new place again to come back to every day, every week. So that's all. यही कहना चाहते हैं कि आप लोग आइए और enjoy करिए Mirabella में। नाइट आउट पार्टीज अब तो बंद हो गई है, बस हम पार्टी करवा रहे हैं लोगों को। हाँ, नहीं जाते हैं। जैसे मीराबेला जैसा जगह है जहाँ पे जाने से आपको पूरे दिन के थकान के बाद नहीं वर्क सो हार्ड, सो ऐसा जगह में आपको अच्छा लगता है। शूटिंग करके आते हैं या प्रोडक्शन ख़त्म होता है तो यहाँ आते हैं तो अच्छा लगता है। और दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, आई सीन दिस प्लेस बिफोर एंड पीपल डू कम एंड एन्जॉय दिस प्लेस। यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू सो Thank you. You know, I'm very excited with this new product because I think finally, with all my experience in this industry with Elbow Room and my earlier experience with Mirabella, I've tried to put in all my, detailed intelligence and hard work, and I think I've reconstructed the whole property absolutely like we're starting new and fresh. So I'm very excited about that. Talking about the food, it's totally revisited, new menu, new cocktails. So how excited are you? It's been your baby, and you've nurtured it from day one. You know, yes, actually, I realized that for anything in life, you need to have a lot of passion. And I fortunately found a great team this time. The two boys have worked extremely hard, Nizam, Ahmed, especially Nizam. It's been like working with a brother, and then you realize the factors like honesty and loyalty when you get in life. Then you can get whatever product is there in your mind. So whatever was in my head, I was able to tell them, and they were able to replicate those things. So I think, we really pushed the buttons with the food, and we wanted to go very economical. Hello everyone. Hi, that's Rahul. Yes, स्वराज कपूर। Yeah, hi. ये जो भी काम करता है ना, बड़ा आध्यात्मिक होता है। नाइट क्लब हो, योगा हो, होलिस्टिक अप्रोच होता है, और एक अकेला शोमैन है जिसके लिए हम सब आते हैं। वैसे इसके असली नाम राहुल है, तो दो राहुल है, हम लोग पप्पू नहीं हैं। So it's beautiful place. We all are enjoying it. He is entrepreneur. He goes to slum. ये ऐसा नहीं कि घर बैठा रहता है और बड़ी बातें करता है। ये गरीब बच्चों से लेके सोशल वर्क से लेके योगा से लेके नाइट क्लब से लेके हर समाज के तबके को खुश करता है, उनको एक सुकून का मोमेंट देता है, क्षण देता है। तो ही इज द मैन ऑफ द ईयर फॉर मी। कम ऑन, स्वराज कपूर। Yeah. Well, that's something which is very, very dear to my heart right now. I'm extremely clued in with that. It's taking away 1000% of my heart and my mind. I've started a slum foundation, which I'm working on different slums, going to different slums, providing medical help to all of them. We have got kid volunteers over there. We are trying to provide them teachings of cleanliness. We pick up jhadus and do it ourselves. We also, and it's a lot of fun because it's with kids. We are trying to imbibe them the policies which are there, which the government should be giving them, like about electricity, their homes, rehabilitations.
you're like, it's like a very complete journey. It's something which is very close to my heart. I don't like to talk too much about it. I have to add one point here. and- Sorry, I'll add point. Yeah. आपको लगता है कि सूरज कपूर सूट पहन के एसी में घूमता है, और जब आप स्लम्स में जाओगे वहाँ 1 फुट की सिर्फ गैप होता है 2 स्लम्स के अंदर, तो वहाँ जाके भी लोगों को वो उम्मीद की सांस देता है. You know, he works. So he's not an elitist of Mumbai. He goes there on the field and works. आई थिंक ही इज़ वेरी राइट अबाउट इट. सूट तो खैर पहनना पड़ता है, आप लोग क्लब में बुलाते हो, वरना मैं बहुत ही देसी टाइप का आदमी हूँ, बड़ा सड़क से जुड़ा हुआ. और अभी कल हम लोगों ने टॉर्च मार्च भी किया एट इंडिया गेट. इट वाज ऑल ओवर, विच वाज अगेंस्ट द मोस्ट हिनियस क्राइम विच हैज़ टेकन प्लेस, द माइनर किड्स बीइंग रेप्ड, एंड वी टोटली कंडेम्ड इट. तो ये सब थोड़ा बहुत कर रहे हैं हम लोग, जो कर सकते हैं. Thank you. Thank you, Thank you everybody. very much. इसमें मैं थोड़ा सा एक सेकंड बस बोल दूँ. Rolling? Suraj, talking about the food in the place and what would you like to add on Mirabella? You know, visually, I wanted it to be a very international. I've taken the space where we have utilized each and every inch. You know, it's very detailed this time. It's very detailed this time. As for the food, we made it very affordable. We've got different type of cuisines now. You know, Indian, international, mixed. Club, we have different cuisine, snacks. Cafe, we have a totally, absolutely complete, cuisine which we have. Khalisi Terrace. Also, I want to add, we have a place which is Short Bar, which we are making into an elite VVIP next month. By next month, once we are launched with the lounge, then we come out with the cafe, which will come out by next week, and the elite area, which will be launched another week, which will be attached to the lounge. So it will be a very, very complete place, all in one, under one building. So you don't need to go and, whatever you need, you get it under one hub. So that's ये खाना तो सब अच्छे बना सकते हैं, मगर सूरज कपूर का जो प्यार है, जो माँ का प्यार होता है, ये बाप है, मगर माँ का प्यार जो होता है ना खाने में, इसकी उसकी टीम में है, तो वो फ़र्क है इसमें और बाकी लोगों में. ये प्यार से हर चीज़ बनाता है, ट्रेडिशन बनाता है, इसलिए अगर स्वाद हर चीज़ का, हर फीलिंग का स्वाद बहुत अच्छा होता है. Also, I would like to just add one last thing, that basically because I have a daughter and I'm trying to be very organic Beautiful in my daughter. life. Yes, very beautiful daughter, 2 years old, nearly 2 years. Ariana, her name is. So based on her, I'm trying to start chemical-free organic cafes, which will be, providing health and nutrition to people. So that will be my next aim. And I'm very thankful to everybody who's come down over here, especially my mother, Natasha, my sister, and very, very close friends like Rahul and all of you. Thank you very, very much for all the support. And I need the support and encouragement all the time. And if we go wrong somewhere, tell us. We are ready to rectify those things. इसके अलावा आपसे और एक चीज़ जानना चाहेंगे. अभी आसिफा के बारे में, जो गैंगरेप के बारे में जो चल रहा है, उसके बारे में अगर आपने व्यूज़ क्या है एज ए इंडियन? देखिए, गैंगरेप कहीं भी हो, ये मानवता के खिलाफ क्राइम है. इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए. कौन किस धर्म का है, कौन किस राज्य का है. गैंगरेप या रेप, मेरे ख्याल से इसके लिए हमारे समाज के साथ क्या गलत है ये समझना पड़ेगा मुझे, और उसके लिए कितनी हार्श पनिशमेंट भी हो. और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, भले हरियाणा हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गैंगरेप है. उसके लिए कोई धर्म और कोई जात नहीं होनी चाहिए. जब बच्चियों पे हो, बड़े पे हो, हम सब भारतीय सिर्फ कैंडल न उड़ाएं, हम एक स्टेप आगे लें और मालूम करें कि क्यों हमारे देश में हो रहा है. एक धब्बा है देश बट में. मैं इसको इतना ऐड करना चाहूँगा, मैंने कल भी इसके बारे में बोला इंडिया गेट पे, कि इसको धर्म और राजनीति से जोड़े बिना एक अपवाद माना जाए कि एक बहुत ही कुकर्म, बहुत गंदा, घटिया, जो इंसान कहलाने लायक आदमी नहीं है. हमारी न्याय प्रणाली जो है, जिसके ऊपर हमारे को पूरा विश्वास है, मुझे
पूरा भरोसा है कि वो जो भी दुष्कर्म जो इन लोगों ने किया है उनको लाके उनको सज़ा दी जाएगी, और ऐसी सज़ा दी जाएगी जो लोगों के लिए मतलब एक अपवाद बन जाए कि ज़िंदगी में ऐसी चीज़ करने से पहले लोग घबराएं इस तरीके के। स्वराज, मैं क्या सोचता हूँ हाँ कि हम लोग सजाए मौत भी दें, पर कहीं तो हम ये भूल रहे हैं, जब हम उंगली एक तरफ करें, उंगली हमारे पास 3 है, कुछ तो हमारे समाज से गलत है। हम यहाँ नहीं कहते कि पॉर्न मत दिखाओ, हम कहते असली फिल्म मत दिखाओ, और तभी हमारी आबादी 125-30 करोड़ होती है। हमारे में कुछ गलत है। जो समाज, हमें क्या होता है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, साइकेट्रिक जनरल ऑफ इंडिया नहीं होता है। ये देश की कई मानसिकता सटक गई है, युवाओं की मानसिकता सटक गई है, और हम थर्की नेशन हो गए हैं, और महा ठरकी और क्रिमिनल नेशन हो गए। ये हमें मानना पड़ेगा। जब हम अपनी गलती मानेंगे एज ए नेशन, भले वो जो गैंग रेप करना उसका उसके माँ बाप, उनके फोटो टीवी पे होने चाहिए, उनके स्कूल टीचर, उनके नुक्कड़ के दोस्त, नहीं, बट सभी ने आना चाहिए। बट बेसिकली जो इस तरीके का है, ये हमारे समाज में कुरीतियाँ हमारे अंदर है। 8 साल के बच्चों, 14 साल के बच्चों के साथ में इस तरीके की चीज़ें होना कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं है। तो आई थिंक वी शुड टोटली कंडेम सच थिंग्स एंड सच पीपल। एंड नहीं, देखिए, ऐसा कानून को एक्सेप्शनल केसेस में ला के बोलना किसी भी चीज़ के लिए गलत है। कानून, अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो बड़े बड़े लोग कानून के दायरे में फंसे हैं। मीडिया ने और कानून ने अपना काम बेखूबी निभाया है, और आप लोग और मीडिया के लोग और कानून के सब लोग अच्छा अपना काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें जब तक आपके पास में 100% अपने कानून अपने दायरों में भी है, आप इसलिए कानून को कुछ कहना ठीक नहीं है, और हमारे किसी के लिए भी उसके ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। कानून ये नहीं है कि किसी ने गुनाह देख लिया, राजा है, कि डेमोक्रेसी की गोली मार दो। कानून अपनी प्रक्रिया करेगा, मगर जनता को ये भी सोचना है कितनी प्रक्रिया किएगा। ये नहीं बोलना है लड़कियों के 8 बजे के बाद घर मत घूमो, बाहर मत जाओ। लड़कों को बोलना है साले 8 बजे तू घर वापस आ जा। जब तक हम लड़कों को नहीं सिखाएंगे ठीक होना, तो लड़कियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। और आपके बेटे जो देख रहे हैं वो गुनहगार है, उनका एक्सपोजर नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है, लोग स्कूल अलग होती है। We need to have self censorship on our own self and teach our kids and our boys especially to be better humans. देखिए, हम कहते हैं कि एक अच्छी दुनिया छोड़े अपने बच्चों के लिए, क्यों ना अच्छे बच्चे छोड़े अपनी दुनिया के लिए। थैंक यू सो मच।
it's always good when you come on the launch of, I can say, relaunch of Mirabella kind of stuff, because they are the brand in this industry since so long. So I wish them luck for their this thing. And yeah, of course, we are quite excited because too many good and new clubs are coming. And it's good for the growth of this industry. And from our side, yeah, of course, heartiest congratulations to them. We just went and took a look inside. बहुत अच्छा लग रहा है. It's looking very pretty. And it's revamped, rocking. So, and it's in this area, जहाँ I think 99% हम लोग के जो industry है, it's in a very nice area. And once it's revamped, I'm sure it'll be a full buzz now. And I wish them all the best. Thank you. Thank you. Thank you. Wait, sir. Thank you. Wait. Video will. Ma'am, look here. Thank you, ma'am. Yeah. No, yeah, sir. Thank you. Wait, sir. Sir, wait. Sir, wait. No, 1 minute. Thank you, sir. छापो तुम्हारी माँ मेहनत करो. Wait, sir. Wait, sir, wait. सुनोगे ऑफिस में. Thank you, sir. Thank you, sir. I have been a fairly die-hard patron of Mirabella for a very long time. I don't really think that it needed a launch, but I'm sure post the relaunch it's going to be really reloaded. Okay, reloaded with truckload of fun that it had earlier. It's going to be double, triple, quadruple fun. The cuisine I'm given to understand is being reinvented completely. The interiors I'm yet to check out, but looking at what my experience has been earlier, I'm sure it's going to be a phenomenal evening and a phenomenal relaunch. So I wish Mirabella a superb relaunch. Thank you, sir. Thank you.
क्या कह रहे हो? इनको कुछ बुलाओ। हाँ क्या? क्या कहना चाहेंगे आज? यार बहुत अच्छा है। मीराबेला जो पहले था यहीं पे, वो भी बहुत सुपर हिट था, एंड नाउ मीराबेला रीलोडेड इज़ देयर, एंड आई एम श्योर इट विल बी अ वेरी रॉकिंग प्लेस। आई विश स्वराज ऑल दी वेरी बेस्ट, जो ओनर हैं बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारे इंसान हैं, एंड आई विश हिम ऑल दी वेरी बेस्ट। और भगवान करे कि ये खूब ज़्यादा चले और हिट हो, और क्योंकि ये सेफ़ जगह है, एक अच्छी सेफ़ सिक्योर्ड फीमेल्स के लिए भी बहुत सिक्योर्ड जगह है। सो आई एम श्योर कि जो लोग आएंगे वो अपने आप को वो खुल के एंजॉय कर पाएंगे। आई वांट टू डू द सेम नाउ। यार मैं बहुत ज़्यादा नाइट्स वाला इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठना पड़ता है। आई गो फॉर माई जॉग्स एंड ऑल, लेकिन हाँ मैं ऑफ एंड ऑन पार्टी करने जाता हूँ, और बहुत इन्जॉय भी करता हूँ। अपने क्लोज नेट मेरे जो दोस्त हैं उनके साथ मैं इन्जॉय करता हूँ, और ऐसी जगहों में आता हूँ, मीराबेला रीलोडेड टाइप जगह पे, जहाँ पे मुझे मज़ा आए, विच इज़ फन एंड विच इज़ सेफ़। यार ये मतलब अभी ईश्वरी कृपा रहेगी, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ मैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, और भगवान करे कि अब जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत सुपर हिट हो जाए और आप लोगों को पसंद आए। थैंक यू। राजीव, क्या कहना चाहेंगे मीराबेला रीलोडेड, और कितना पार्टी करना पसंद करते हैं आप? अगर हमारी ऑडियंस के साथ यार वी आर फॉर्चुनेट कि हम लोगों को हर नई जगह पे बुलाया जाता है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो रेस्टोरेंट्स खोलते हैं, नई नई जगह खोलते हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड टू बी अमंग्स द फर्स्ट फ्यू पीपल टू कम एंड विजिट द प्लेस एंड कम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एन्जॉय। तो आई बीन है बिफोर, अभी मैं अंदर गया नहीं हूँ, बट आई एम श्योर कि जो मैंने सुना है बहुत अच्छा बनाया है। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। किस तरह के गाने पसंद करते हैं ड्यूरिंग पार्टी, ऐसा कुछ शेयर करना चाहिए? आई लाइक बॉलीवुड म्यूज़िक। मुझे लगता है कि हमारे हिंदी फिल्मों के गाने बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है, और अदरवाइज़ आई लाइक ट्रांस। राजीव, इसके अलावा थोड़ा सा एक अलग सवाल जानना चाहूँगा आपसे, जो हाल ही में गैंगरेप हुआ आसिफा का, उसके बारे में क्या व्यू है? एज ए इंडियन आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा। मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली सिर्फ आसिफा का ही नहीं, जो यूपी में लड़की का रेप हुआ वो भी बहुत गलत था, और मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं कि एक मुसलमान लड़की का रेप हुआ गलत है, वो एक बच्ची है, एक बच्ची का रेप हुआ, और जो हम कह रहे हैं कि एक हिंदू ने किया, एक मुसलमान ने किया, उन्हें कोई धर्म में वो किसी धर्म का हिस्सा हो ही नहीं सकते, चाहे ना वो हिंदू हैं ना वो मुसलमान हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुसलमान किसी भी बच्चे का रेप करता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदू किसी बच्चे का रेप करता है, किसी का भी रेप करता है। जो ऐसे कुकर्म करते हैं उन्हें पहले तो धर्म से बाहर निकाल देना चाहिए और उन्हें गोली मार देनी चाहिए। आई बिलीव दैट क्योंकि हमने निर्भया केस के लोगों को आज तक ज़िंदा रखा है, अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने रेप किया है आपको फांसी दे देनी चाहिए। जिसने भी जो भी रेप करे, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी का भी रेप किया हो, उसे सीधे फांसी देनी चाहिए। जैसे कि सॉरी लेकिन इस्लामिक देशों में इसी तरह के पनिशमेंट दी जाती है, तो इसलिए वहाँ पे इस तरह के क्राइम्स नहीं होते। बाकी चीज़ों में लोग पॉलिटिक्स करते हैं, ना करें, लेकिन बेटी बचाओ को ऐसा लग रहा है कि अब बेटी के बाप को भी बचाओ। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग, और आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट। और उसे धर्म का कलर नहीं देना चाहिए, जो वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो। फांसी मीन्स फांसी, और जल्दी से जल्दी देनी चाहिए। राजीव, ऑन अ लाइटर नोट, बहुत टाइम हो गया आपको बड़े पर्दे या छोटे पर्दे पर देखे हुए, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है अगर आप अपने फैंस को बताएं? यार अप एंड कमिंग हमारा शो स्टार भारत पे चल रहा है, जीजी माँ, प्लीज़ ज़रा आप टेलीविज़न देखा करिए। 6 महीने हो गए, हम लोग टॉप रैंकिंग शोज़ में से हैं। हम चैनल पे नंबर 3 हैं, और हम बहुत जल्दी चैनल पे नंबर 1 हो जाएंगे। जीजी माँ मेरा नया शो चल रहा है। बड़े पर्दे पे यार मैं आजकल टीवी का साइज़ बड़ा हो गया, पहले छोटे होते थे, आजकल टीवी हो गए बड़े, और सारी फिल्में वहीं पे आती हैं, तो मेरे स्क्रीन पे सारे फिल्म स्टार आते हैं। मैं अपनी जगह पे टिका हुआ हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू ऑल।
वेल सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस स्वराज और मीराबेला की पूरी टीम को। ऑब्वियसली मीराबेला बहुत ही खूबसूरत जगह थी और है और हमेशा रहेगी, और आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि स्वराज बहुत ही पॉजिटिव इंसान है और बहुत ही अच्छा दोस्त है, यारों का यार है वो, और मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त भी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड द एंटायर टीम ऑफ मीराबेला, और आई विश देम ऑल द सक्सेस एंड डू सम ग्रेट नाइट्स, सम रियली क्रिएटिव स्टफ हियर, and I'm looking forward for this place. Thank you.
है।